Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. Last time we performed lab number 08, which was about the signed and unsigned multiplication. It does have a lab task, so you can do it with lab number 9's lab task. So at the end of this lab, I'll give you a lab task, so please perform it. Let's start with the basic objective of the lab number 9, that what his objective is to study and understand the assembly language instruction for basic logical operations is basically the objective of lab number 9. What are basic logical operations are? You guys might have an idea in your intermediate or in the start of the semester in your engineering. You guys have read about the and or not operations. These are basically the logical operations which are performed with the help of the different kind of gates. But how can we perform it on emulator 8086 microprocessor? We will check it today with the help of an emulator. We will run the codes and we will see how the things are executed over that software. So starting with a little bit introduction of the basic logical operations. A logic operation works on a bitwise level. Starting on the left, a bit from each operand has the logical operation performed and the results in a Boolean value. This process proceeds until all the bits have had the logical operation performed. The Intel 8086 microprocessor instruction set contains instruction for performing basic logic operation. The example of these logic operations are AND, OR, NOT, XOR, and negation, and the test instructions as well. So the question is why we use this kind of sequence which you are seeing on your screen right now and around which I am moving a cursor. होता हमारे पास बेसिकली यही है कि हम हर नंबर को डिनोट करने के लिए हम बेसिकली 4 बिट्स यूज़ कर रहे होते हैं. तो नंबर हमारे पास 10 तक होंगे तो उसको हम 4 बिट से डिनोट करेंगे. जैसे अगर हम बड़ा नंबर हो जाएगा 18 है, दो नंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर 1 एंड 8, उसको डिनोट करने के लिए वी विल यूज़ 8 बिट्स. 4 एक के लिए, 4 एक के लिए, 4 फॉर द वन, 4 फॉर द अदर वन. तो 22 है, 30 है, 98 है. ये बेसिकली दो नंबर्स हैं. अगर ज़्यादा होते जाएंगे तो हमें नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमने बेसिकली कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझानी है. तो ये हमारे हमेशा हमारे पास जो है राइट से लेफ्ट मूव कर रहा होता है. इसका मतलब यही होता है द मोस्ट राइट वन बिट विल रिप्रेजेंट के यार ये 2 टू रेज पावर 0 है, मींस इस वैल्यू विल बी 1. The next bit will represent that it's 2 raised to power 1 and its value will be 2. Then the most right bit which you are seeing right now, sorry left bit जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 2 raised to power 2 होगी तो ये 4 को represent करेगी. And then next one is 2 raised to power 3 जो कि हमें 8 को represent कर रही होती है. तो एक नंबर को represent करने के लिए हम 4 बिट्स ही यूज़ कर रहे होंगे. तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म किस तरह हो रहा है. एंड ऑपरेशन का you guys might have a good idea that AND operation is basically the multiplication of the two numbers or between the two logical gates. So अगर A और B है तो multiplication में हमेशा 0 into 0 0 ही आता है. 1 into 0 करेंगे we will have the answer 0. 0 into 1 करेंगे again we will have the answer 0. And 1 into 1 करेंगे then we will have the answer 1. ओनली 1 into 1 जब दोनों बिट्स हाई होंगी तो हमारे पास आंसर 1 होगा. उसके अलावा हमारे पास सारे आंसर्स उसके 0 होंगे. हाउ कैन वी परफॉर्म इट एंड हाउ द लॉजिक डज वर्क बिहाइंड दिस, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास वो किस तरह हो रहा है. सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि यार हमारे पास प्रोग्राम है मूव AL 0 0 0 1 1 0 1 1 बाइनरी का. हमने इसको एंड कर दिया है AL के अंदर ही 0 FFH के साथ जो कि एक हेक्सा है. और FFH का मतलब ये है कि ये सारी ही बिट्स जो 8 बिट्स पे वैल्यू आएगी वो सारी की सारी हमारे पास हाई वैल्यूज आएंगी. तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख कर देखूँ तो जैसे यही ऊपर चीज़ थी इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया 0001111, ठीक है. और ये FF को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1111 के साथ.
तो अब हम जैसे हम ऊपर टेबल के अंदर परफॉर्म करते थे, सिमिलरली हम नीचे ऊपर नीचे वाले दोनों डिजिट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 इंटू 1 1 होता है, अगेन 1 इंटू 1 1 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 1 इट वुड बी 1, 1 इंटू 1 इट वुड बी 1, एंड देन द रिमेनिंग वैल्यू 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। तो ये बेसिकली एंड ऑपरेशन की एक वैल्यू होगी। तो मैंने क्या कहा कि ये 4 बिट्स, ये मेरा कर्सर की राइट और लेफ्ट पे, तो ये 4 बिट्स एक नंबर को डिफाइन करेंगे और ये 4 बिट्स एक नंबर को डिनोट करेंगे। तो इन 4 बिट्स का अगर मैं करूं तो ये वैल्यू क्या थी, अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 0 करूं तो ये 1 है, तो इसको मैं 1 ही कंसिडर करूंगा। ये वैल्यू भी 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 की है, तो ये 2 होगा, तो 1 प्लस 2 3, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 की थी और ये 2 रेज़ टू पावर 3 की थी जो कि 8 है। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 इट वुड बी 11। तो हेक्सा के अंदर 10 हमारे पास ए होता है और 11 हमारे पास बी होता है, तो एक नंबर को तो हमने डिनोट कर दिया कि ये बी है। अब इन 4 बिट्स को देखते हैं तो इनमें सिर्फ यही मोस्ट राइट बिट जो है वही 1 है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये 1 बी हमारे पास आ रहा है। तो इसका अगर हम कोड के थ्रू करके देखें, एमुलेटर के थ्रू करके देखें, एमुलेटर 808 के थ्रू करके देखें, तो हमें उसका कोड मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास उसका सिंटेक्स था तो वही ओरिजिन 100 जो हम पहले भी यूज़ करते हैं वो हमने इसके अंदर पुट किया। मूव AL, वही ऊपर वाली वैल्यू जो जैसे हमारे पास ये गिवन थी, इसी वैल्यू का हमने इसके अंदर पुट किया, एंड AL 0FFH किया, रिटर्न किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 1B। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे देन यू सी एन आंसर इन द AL क्या आ रहा है 1B। यू कैन ऑब्जर्व दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, तो हम इसको कहते हैं और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का भी आप लोगों का आइडिया होगा कि दो नंबर्स का एडिशन के थ्रू ही बेसिकली ये हमारे पास वर्क कर रहा होता है। तो एग्जांपल बिटवीन 81 एंड 82 के हमने इसके दरमियान और ऑपरेशन करना है। तो 81 को हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको टेबल की तरह ऑब्जर्व कर सकें, जैसे हमने एंड ऑपरेशन में किया है, कि हमें आइडिया हो जाए कि इसकी बाइनरी में हमें की नंबर्स किस तरह हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो 81 को अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो उससे हमें 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 को डिवाइड किया 81 से तो हमारे पास 40 आया, रिमाइंडर 1। अगेन 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास 20 आया, रिमाइंडर 0। अगेन हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर 10 आया, रिमाइंडर 0। अगेन हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 5 आया, रिमाइंडर 0। और 5 से डिवाइड करेंगे 2 2 4 होगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और उसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ही हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। अगेन हम इसको करेंगे तो वो 2 1 2 और ये 0। तो अब हम इसको लिखते हैं किस तरह, हमेशा इस पोजीशन में 1 0 1 0 0 0 1। आप ऑब्जर्व कर लें 81 का क्या आ रहा है 1 0 1 0 0 0, ये 3 0 एंड 1 अगेन। तो ये 7 बिट्स में हम लेफ्ट साइड पे एक बिट ऐड कर देते हैं 0 की ही, ताकि हमारे पास पूरा वर्ड बन जाए, पूरा हम नंबर्स, दो नंबर्स को डिफाइन कर सकें, क्योंकि 88 और 1 दो नंबर्स हमारे पास यूज हो रहे हैं। 9 नाउ हम क्या करते हैं 22 को ऑब्जर्व करते हैं कि हमने इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। 2 11s are 22 0, 2 5s are 10, 1 रिमाइंडर, 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर अगेन, उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया। तो ये 1 0 1 1 0, ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, तो इनके राइट साइड में हमें 3 जीरोज ऐड करने पड़ेंगे। ऑब्जर्व दैट 1 0 1 1 0 था, तो हमने सॉरी लेफ्ट साइड पे हमने 3 0 ऐड करके उसको 8 बिट्स बना दिए ताकि हम उसको दो नंबर्स डिनोट कर सकें। वही ऊपर 81 का नंबर लिखा हुआ है और हमने 22 का नंबर लिखा हुआ है जो हमने कन्वर्ट किए बाइनरी के। और 1 0 प्लस हो रहा है तो 1 0 1 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा, 0 1 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 1 1 आ गया, 0 0 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, 0 0 0, जैसे कि आप टेबल में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि
ये सारा हमने इस तरह परफॉर्म किया। अब अगर मैं इनको 4 बिट्स को लेफ़्ट और राइट पे कन्वर्ट करूँ, अलग-अलग कर दूँ, तो अब अगर मैं राइट वाली को करूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 + 2 + 4 7, ये 7 आ गया। देन अगेन 1, अब इन 4 को 1 + 4 5, ये हमारे पास 5 आ गया। नाउ वी विल ऑब्जर्व इट इन द फॉर्म ऑफ एन एमुलेटर। हम कोड की फॉर्म में देखते हैं, वही अगेन सिंटेक्स फॉलो किया, ORG 100H हेक्सा में कर रहे हैं, OVL 81 और AL 22, और इसी में ही वो ओवरराइड करके आपको वैल्यू दे देगा। तो आंसर क्या आ रहा था, 57। तो बेसिकली ये क्या करता है, एमुलेटर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देता है जो कि 57 आ रहा है। बीच में जितना भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है वो आपको नहीं शो करवाता, और बैक एंड पे अपने पास परफॉर्म करके आपको आंसर दे देता है और आपके लिए एक इफेक्टिव सिस्टम बनता है। नॉट ऑपरेशन क्या होता है, नॉट ऑपरेशन इट इन्वर्ट्स द वैल्यू। इट विल, जैसे अगर हमारे पास नंबर है 0 1 0 1 0 0, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ 1 0 1 0, मतलब इन्वर्ट कर देगा। 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 होगा। तो अगर इसके अंदर हम देखें कि हमने AL किया है 0 1 0 1 0 1 0 1, तो अगर इन 4 को मैं देखूं तो ये क्या बनते हैं, 1 + 4 5, 1 + 4 5, और आप इन्वर्ट होंगे तो ये वाले ऑन हो जाएंगे बिट्स, और ये वाली जो 1 थी ये 0 हो जाएंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 + 2 10, 8 + 2 10, और एग्जाम में हम 10 और 10 को क्या लिखेंगे, ए। डबल ए हमारे पास आंसर उसका नॉट का वो शो करवा देगा कि ये हमारे पास आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, टेस्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू चेक व्हिच फ्लैग इज ऑन एंड ऑफ। हमने फ्लैग्स पढ़े थे सेकंड लैब में, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग। तो ये बेसिकली टेस्ट ऑपरेशन क्या करता है कि हर ऑपरेशन परफॉर्म जो हो रहा है तो उसमें हमें शो करवा देगा कि कौन सा फ्लैग 1 है और कौन सा फ्लैग हमारे पास 0 है। अगर 1 होगा तो वो ऑन होगा, और अगर 0 होगा तो वो हमारे पास ऑफ होगा। तो प्रोग्राम हम चेक करते हैं, इनपुट में हमने किया मूव AL, मूव BL में उसने एक वैल्यू दी, टेस्ट AL BL उसने किया, तो वो एक सेपरेट विंडो आपके पास जनरेट कर देता है ये फ्लैग की। इसके ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकेंगे कि हमारे पास 0 फ्लैग ऑन है, पैरिटी फ्लैग ऑन है, तो इसी तरह आइडेंटिटी फ्लैग ऑन है। तो ये फ्लैग्स हमें शो करवा देता है कि कौन सा फ्लैग हमारे पास इसमें ऑन होंगे, कौन से ऑफ होंगे आफ्टर द execution. So this is basically the lab number 9 about the logical operation. एक lab रह गई, एक instruction रह गई है जो कि XOR instruction है. That would be your lab task. I will generate it on the team. Kindly perform it on time and kindly submit it on the team as well. तो XOR basically opposite है OR instruction का. That would be an easy one for you. So you can do it and please submit your assignments on time. Thank you. That's your instructor, engineer Mughir Shah. Thank you.